Hello guys, how are you all? Hope doing good. I'm great. Uh, I will share with you one story. I've come across a girl named Diana and wanted to share her life with you all. So this girl, oh yeah, in the beginning I would tell you principle. Diana follows a principle in her life that let me live life with my own terms, with my own way, in my own style. She is always ready to take the risk. She is not someone, who breaks down easily. Of course, she has emotions, um, and she also feel heartbroken, but she has also gathered strength. She has so much of strength to gather herself back and make herself a masterpiece. So Diana has been supported always in her life by family and friends. Okay, her decisions were appreciated as she started growing more. As time started moving on, she started growing more and more, and she started taking more and more independent decisions, bold decisions. Um, Slowly and slowly, she figured out that people have started stepping out of her life. She has been labeled as selfish. She has been, you know, labeled as arrogant. She has been labeled as, blah blah blah. So, even she has emotions, right? We all of us have. She screamed out louder, she cried out louder, she was broken into pieces, and trust me, there was no one to listen, no one to give a hand of help. But she doesn't need anyone. She is self-sufficient. She knows how to gather her inner strength, how to stand up again, how to fight life, how to fight society. She has that strength. And she, Diana, she, I mean, staying alone or staying with her loved one, beloved one, and now staying alone. Apart from that, nothing has broken her down, nothing has challenged her strength. She still is ready to experiment life, make more mistakes, learn from them, and fragrance her own self, enhance her own beauty. She is beautiful in her own way because she knows everything from her own experiences. I'm sharing this with all of you is because we all have come across these phases in our life often. Everyone might have. But we might step back, or we may just get into depression, get frustrated. Let me clear you, this all happens to Diana also, but that is only for a period because she is also a human. Since our childhood, we have been raised up like this, and we all have two face. We say something and actually we follow in our life something. So it is since childhood, everyone might of us have heard of a phrase, try but never cry. And I have a question for all of you, that how many of us really follow it? Try but never cry. We say try but never cry. ठीक है, काफ़ी पेरेंट्स ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, काफ़ी सोसाइटी ने भी इसको एक्सेप्ट किया,
बट इसकी एक बाउंड्री बना दी है, एंड दैट बाउंड्री इज लिमिटेड only to your studies, only to your careers. Oh, see, I'll clarify it. It is like अगर आप फेल हो जाते हो एक क्लास में, या आपने कोई कोर्स ऑप्ट किया है, आप कोई डिग्री हायर एजुकेशन के लिए ऑप्ट कर रहे हो, एंड या आप कोई पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपका वो पेपर क्लियर नहीं होता है, तब आपके पेरेंट्स, तब आपके फ्रेंड्स, तब आपकी सोसाइटी आपको ट्राई ट्राई एंड नेवर क्राई वाला प्रिंसिपल बताएगी. दे विल से इट्स ओके बेटा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आप दोबारा ट्राई करना, यू आर गोइंग टू रॉक, होता है, इट्स ओके, डोंट गेट डिसहार्टेंड, डोंट गेट डिस्करेज, और आपको एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोल के मोटिवेट करेंगे. वेरी गुड, थम्स अप, अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग सब कोई. बट आई वॉन्ट टू आस्क यू कि लाइफ सिर्फ स्टडीज़ या करियर तक लिमिटेड है क्या? बिकॉज अपार्ट फ्रॉम स्टडी, अपार्ट फ्रॉम करियर, नो वन से try beta, try this in life, try that in life. Society will come and tell you do this, don't do that. No one will say you try, see कि क्या रिजल्ट आता है. अच्छा रिजल्ट आता है तो आगे भी फॉलो करना. इफ़ अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो स्टॉप देयर, हम कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम कुछ और ट्राई करेंगे. नो वन सेज दिस. आई थिंक आप लोग सब कोई मैं क्या बोलना चाह रही हूँ रिलेट कर पा रहे हैं. पर जब हम अपनी लाइफ को देखें, या जितने भी मतलब अपनी एजुकेशन लाइफ कंप्लीट कर चुके हैं, अपने करियर में हैं, लाइफ में आगे हैं, तो वो लोग ज़रूर इस बात को समझ पाएंगे कि जो हम पढ़ाई करते हैं, जो हमारा करियर है, वो बहुत ही स्मॉल पार्ट है हमारी लाइफ में. हमारी लाइफ में डिफरेंट स्किल्स की ज़रूरत होती है. जैसे हमें कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं हम हमारे घर वालों के साथ, फ्रेंडशिप मेंटेन करते हैं, सोसाइटी में क्या बिहेवियर होता है. देयर आर लॉट एंड नंबर ऑफ थिंग्स इन लाइफ. और जो स्टडीज़ है वो उसका मेरे हिसाब से तो आई विल टेल यू इट इज़ वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट. सो आप वो ट्राई वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ स्टडीज़ के लिए बोलते हो, एंड यू थिंक यू हैव ब्रॉडन अप योर माइंड सेट. इट्स टोटली अनफेयर अकॉर्डिंग टू मी. ट्राई वाला कॉन्सेप्ट जो है, इट शुड बी इन एवरी फेज. An individual person should be accepted for making a right or wrong decision by society, by family, by friends, by everyone. But आप लोग ने भी नोटिस किया होगा कि हम लोग पीपल को जज करते हैं सोसाइटी में. वी से दिस पर्सन इज लाइक दिस, दिस पर्सन इज लाइक दैट, एंड वाई टू लेबल दैम? लेट्स नॉट लेबल दैम बिकॉज वी थिंक दे आर लाइक दैट. They are not like that. They have just made it is their individual choice. They are independent. I will also relate it with one more thing, one important thing, one major thing, and that is the only purpose why I am here. It is I've come across one bhajan, and I will just say 4 lines of it. It says like, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे. मतलब मिट्टी में मत गवा दो इसको, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे. आप लोग ने भी सुना होगा मे बी. पर इसका सार क्या है, इसका मतलब व्हाट दिस लाइन्स मीन. बहुत डीप है ये लाइन्स, मुझे बहुत डीप लगी कि हम जो मनुष्य जन्म में आए हैं, इट इज़ सेड दैट कि मनुष्य जन्म बहुत 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 मुश्किल में मिलता है. हिंदुइज्म में तो बोलते हैं 84 लाख योनियों के बाद हमें ये लाइफ मिलती है. तो इज़ दिस लाइफ इज़ मेंट कि आप आओ, पैदा हो जाओ, एंड यू स्लोली ग्रो अप, और जब आप इतने समझदार बन जाओ कि आपको कोई बातें समझाए, तो जो आपको पास ऑन हो गया है, आप वैसे 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 ज़िंदगी जियो और मर जाओ. मतलब आपकी सोसाइटी विल टेल यू दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग.
एंड फिनिश। मतलब जो आपके एंसेस्टर्स ने किया है वो सेम आपको करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट, कार्बन कॉपी करेंगे हम और हमें मर जाएंगे। दिस इज द वे। इसीलिए हम यहाँ हैं मनुष्य योनि में स्पेशली। थिंक गाइस, मतलब इतना तो हमारा विवेक होना ही चाहिए कि हम सही गलत सोचें, समझें और खुद करें। दिस डजंट मीन कि हमसे गलती नहीं होती, मुझसे गलती नहीं होती या आपसे गलती नहीं होती, ऑफ कोर्स, बट लेट अस लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक। कम से कम हमने वो गलत को चखा तो है। कितने लोग हैं वो जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं और वैसे के वैसे मर जाते हैं। क्या पर्पस क्या है? आई क्यों हूँ यहाँ पे? ने वाई यू हैव टेकन बर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग? सो गाइस, डियाना के लिए मैं तो बहुत प्राउड हूँ कि शी इज़ टेकिंग हर ओन इंडिविजुअल डिसीजन। और मैं मे बी यू ऑल ऑफ यू माइट हुएवर इज़ लिसनिंग टू मी, आप लोग भी ऐसे ही कुछ फेज से गुजर रहे हो। आप लोग भी सैडली मे बी अलोन हो, नो वन इज देयर टू सपोर्ट, बट ट्रस्ट मी, आई एम सपोर्टिंग यू विथ ऑल ऑफ माई हार्ट। ठीक है। हमें बोलते हैं मनुष्य योनि में है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं वो मेरी बात ज़रूर समझ पाएंगे। ये बोला जाता है कि हमारे पास ये पावर है, जो मनुष्य हैं उनके पास ये पावर है कि वो या तो अपना डाउनफॉल कर ले या अपने आप को अपग्रेड कर ले, उठा ले। ठीक है। एक मैं बताती हूँ वो आपको एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी साइंटिस्ट है, कोई न्यू इन्वेंशन होता है तो कोई फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल नहीं होता, बट अगर वो गलती करने के चक्कर में ट्राई ही ना करे तो वो कुछ भी इन्वेंट हो ही नहीं पाता। आज हमारे पास इतने गैजेट्स है, लाइट है, कुछ भी इन्वेंट हुआ ही नहीं होता। कितनी मिस्टेक्स हुई है उनके एक्चुअल रिजल्ट्स के पहले। तो हम लोग भी अगर हम गलतियों को टेस्ट नहीं करेंगे तो हम ब्लॉसम कैसे करेंगे एक फ्लावर की तरह? हम कैसे अपने मनुष्य जन्म को अपग्रेड करेंगे? बोलते हैं पाताल लोक, मनुष्य लोक, स्वर्ग लोक। तो हम मनुष्य लोक से अपग्रेड कैसे होंगे जब तक हमने बस सही चखा है और यू नो दोनों की फ्रेग्रेंस, दोनों का टेस्ट हमें पता होगा कि सही क्या है गलत क्या है, तभी तो इन्वेंशन होगा, तभी तो अपग्रेडेशन होगा। तो अपने आप को अपग्रेड करना चाहती हूँ मैं, एंड आप लोग सब के लिए भी यही चाहती हूँ कि मिस्टेक से मत डरिए। ये बात बोलते सबको ही है और फॉलो भी बहुत लोग करते हैं, बट जितने भी लोग फॉलो करते हैं मैंने यही पाया है कि वो लोग सिर्फ आपके स्टडीज़ या करियर तक हेल्प आउट कर देंगे आपको, ये बोल के कि कोई बात नहीं बेटा, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ जर्नी। उन सब के लिए भी मैं ये बोलूँगी कि आप अपने अंदर थोड़ा सा देखिए कि आप कहीं ये फ्रेज सिर्फ इसीलिए तो यूज़ नहीं कर रहे ना। अगर आप बोलते हैं फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, फेलियर से ही सक्सेस मिलती है, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, ट्राई बट नो, क्योंकि ये कुछ भी आप फॉलो करते हैं तो वो लाइफ के हर पैरामीटर पे खड़ा उतरना चाहिए। लाइफ में हर जगह फिक्स होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ करियर और स्टडीज़ के लिए हम दूसरों को मोटिवेट करें और बाकी जगह पे हम बोल दें कि गलत है, ये मैंने समझाया, तुमने ऐसा क्यों किया। नो, रॉन्ग, मेरे हिसाब से तो गलत है। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया मनुष्य जन्म के बारे में, जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं उनको मैं एक और बात बताना चाहूँगी जो मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस की बात है। वो ये है कि whosoever इज़ ऑन दिस जर्नी, देखिए आप सीए करना चाहते हैं, आप आईआईटी करना चाहते हैं, तो आपने आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए ऑप्ट किया, इसलिए आपको आईआईटी के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे। आपने सीए के लिए ऑप्ट किया, इसलिए आपको कुछ उस टॉपिक
टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस आने ही हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, आपको उनको फेस करना ही है। सिमिलरली जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपने लाइफ का, मनुष्य योनि का मतलब ही वही है, सार्थकता ही यही है। हम इसलिए नहीं हैं कि हम ये सब करें कि पैसा कमा ले या रिलेशनशिप्स में फंस जाए, मोह माया में फंसने के लिए नहीं है। इसकी सार्थकता ही यही है कि हम अपना अपग्रेडेशन करके जाएं। ठीक है, हमें ये योनि में हम इसीलिए आए। तो जब जो लोगों ने ये पाथ चूज़ किया है, तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब आपने क्वेश्चन मतलब जो करियर है आपका वो इतना बड़ा चूज़ किया है, आपने एग्ज़ाम ही इतनी बड़ी चूज़ की, आपको इतनी बड़ी डिग्री चाहिए, तो क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो तो सबसे टफेस्ट आएगा ही आएगा। दुनिया का सबसे टफेस्ट क्वालिफिकेशन है ये, तो क्वेश्चंस तो होंगे ही टफ। तो जो लोग इस पाथ में हैं, ऑफ कोर्स लाइफ में बहुत टेस्ट आने वाले हैं, बड़े बड़े आने वाले, जितने नॉर्मल लोगों को नहीं आएंगे उससे ज़्यादा आपको मुझे आएंगे। तो हमें उसे फेस करना है। इस बात को याद रखना है कि जब हम क्वालिफाई हो जाएंगे तो हमें डिग्री भी कितनी बड़ी मिलने वाली है। तो विश यू ऑल ऑफ यू, ऑल द फेलो सीकर्स, ठीक है, थोड़ा सा वर्ड ऑफ मोटिवेशन जैसे डियाना के साथ हुआ, कम से कम हम अपने साथ तो ना ही करें इस डर से कि हमें लोग गलत समझ रहे हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, वी ऑल गेट ब्रोकन। तो ठीक है, सेलिब्रेट करो, इसे भी अप्रिशिएट करो। क्वेश्चन पेपर है, एक क्वेश्चन है, ख़त्म हो जाएगा, इसको अच्छे से फेस कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करना है। टेक इट लाइक दैट, इट विल सीम लिटिल ईजी। ठीक है, एंजॉय कीजिए और बेस्ट विशेस है आपके साथ मेरी। और सी यू सून विद सम नेक्स्ट न्यू टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।